اس خبر کے پرایوجک ہیں اے ایس برانڈیڈ لاٹ والا، لال کوارٹر، کرشنا نگر، دلی۔ اب ایک بچی جو جامعہ ملیہ اسلامیہ کی طالبہ ہے وہ اپنے ایک نظم پیش کرے گی۔ پوری دنیا میں جانے پہچانے جانے والے علامہ ڈاکٹر اقبال کی یوم پیدائش یعنی 9 نومبر کو دلی کی بستی حضرت نظام الدین استھت غالب اکیڈمی میں اردو ڈے کا آیوجن کیا گیا۔ کاریکرم کے دوران دیش بھر سے آئے اردو سے جڑی شخصیت کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ساتھ ہی اس موقع پر فروغ اردو کی عملی تدبیریں وشے پر ایک سیمینار کا آیوجن کیا گیا، جس میں سبھی لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ دیکھیں نیوز الفریو کی یہ خاص پیشکش۔ پنجاب میں کھلی ہے کشمیر کی کلی ہے، بیٹی ہے لکھنؤ کی، بیٹی ہے لکھنؤ کی، شربت ہے شہد ہے یا مصری کی یہ ڈلی ہے، پیاری زبان اردو۔ ادارہ خیال فرمائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ حکیم سید احمد خان صاحب نے اردو کے لیے جو باتیں کہی نظم میں، میں اسی کو نظم پیش کروں۔ ہے اردو جادے شوق پہ رفتار زماں ہے اردو، اپنے محور پہ زمانے سے رواں ہے اردو، اپنے محور پہ زمانے سے رواں ہے اردو۔ اسے دیکھیں کہ وقت کے ساتھ سنورتی گئی زلفیں اس کی، یہی کافی ہے، حضرت میر کی غالب کی زباں ہے اردو۔ کی تعداد 28 سے زیادہ ہے۔ صرف بھیونڈی میں مالیگاؤں میں نے ابھی ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ 38 اردو میڈیم کے ہائی اسکول وہاں مالیگاؤں میں چلتے ہیں۔ آپ کیا کتنے دہلی میں کتنے چلتے ہیں اردو میڈیم کے ہائی اسکول مجھے بتائیں، یو پی میں کتنے چلتے ہیں مجھے بتائیں۔ جب تک آپ عملی طور پر آپ نے عنوان دیا فروغ اردو کی عملی تدبیریں تو جانتا ہے۔ میں مذہب کی بات نہیں کرتا، میں یہ بھی نہیں مانتا کہ اردو کوئی پرٹیکولر مذہب کے ماننے والوں کی زبان ہے، لیکن اس کو بچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ میرا یہ سب آپ لوگوں سے سوال ہے۔ ایسی بات مت کیجیے جس سے ہم کو عملی اقدامات کرنے چاہیے، عملی اقدامات کرنے چاہیے اور اپنے بچوں کو، آپ کا بچہ میں بہت سے مشاعرے میں نے کرائے، اتنے مشاعرے میں نے کرائے، میں اس کی مظلومیت کو ختم کرنے کی اپیل کرنے کے لیے حاضر ہوا، اور وہ ہے ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا اسلام، جو مسلمانوں کے گھروں میں سب سے زیادہ قسم پرسی اور سب سے زیادہ کمزوری کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے۔ یہ اسلام اتنا مظلوم ہے، دوسرے لوگ سمجھ سکیں کہ اسلام کا سچا پیغام کیا ہے، اسلام کی صحیح شکل کیا ہے، اسلام کی تعلیمات اور میسج کیا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بقائے باہم کی ذمہ داری، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا مسئلہ ایسے ہی دو شیر سارے جہاں سے اچھا ہے اور مجھ پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا، یہ کافی ہے۔ بہرحال آپ سب کو مبارکباد۔ آج یوم اقبال اور اردو ڈے ہے، آج اتراکھنڈ ڈے بھی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اور اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ فاروق اپنی بات کو اتنا نہ کر دلیل، کہنا فقط ہی ان سے کہ بہت دیر سے آئے تھے۔ اور اسی کا صلہ ہے کہ ایک مرد کار نے غریب المدنی یعنی دلی جو دارالخلافہ ہے لیکن ہم لوگ کے لیے نہیں، اس لیے ہم لوگ تو پورا نواسی
दिल्ली में इकबाल को जश्न की सूरत देने वाला ये शख्स, और मैं आपसे अर्ज करूं ये उर्दू की निस्बत नहीं है, ये इकबाल की निस्बत है, जिसने सैयद साहब को ये नुस्खे शिफा या नुस्खे मसीहा। हम आप बड़े खुशनसीब हैं और इस पर जितना भी फख्र करें, यानी फख्र बेजा भी हमारे लिए जायज है। मिल्लत तारीख में कभी भी ये मकाम हासिल नहीं हुआ जो हमें आपको हासिल है। ये शरफ हम सबको मिल जाने वाला है। मैं आपसे करूं कि यही एक दो निस्बत और है जिस पर हम आप फख्र करते हैं, और ये है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के पास दो बड़ी अलामतें। अलामतों में हिंदुस्तान की कोई कौम, कोई जात, कोई बिरादरी हम शरीक नहीं है। आगे जाइए, आगे भैया मोबाइल नीचे कर लो यार। भाई इधर जाओ। हाँ हाँ बन गया, हो गया। अरे हक साहब देखिए सामने। हाँ अरे भैया आगे था। सामने देखिएगा, सामने देखिएगा। सामने देखिए, सब किताब देखिए। तो मैं बांट देता हूँ। बस सिर्फ मैं उनका एक चंद शेर सुनाना चाहती हूँ इकबाल साहब का, कि मंजिल के आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल के आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर। शुक्रिया। इकबाल की मुबारकबाद देता हूँ, और जो उर्दू के ताल्लुक़ से यहाँ बात हुई तो मैं इसको दोहराना चाहता हूँ कि जो मिसाल महाराष्ट्र ने दी है, आज वहाँ 5300 स्कूल उर्दू मीडियम के चल रहे हैं और 13 लाख से ज़्यादा बच्चे महाराष्ट्र में ज़रिए तालीम जो है वो उर्दू है। अगर पूरे हिंदुस्तान में लोग अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और उर्दू मीडियम से अपने बच्चों को पढ़ाएं, ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, तो सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। हमको खुद अमली कदम उठाने की ज़रूरत है और इसके लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा, तो ही तरक्की मुमकिन है, वरना इस तरह के फंक्शन करने से उर्दू का कोई ज़्यादा भला होने वाला नहीं है। मैं मुबारक। बस ख़ास बात यही है कि सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह 1997 से जारी है, और प्रोफेसर अब्दुल हक जो माहिर इक़बालियात हैं की सदारत में प्रोग्राम हुआ, और अभी आपके सामने प्रोफेसर सलीम किदवई साहब ने जो बातें कही हैं वो हकीकत पर मुबनी हैं, और लोगों ने यहाँ से अज़्म किया कि हम अमली कुछ काम करेंगे। ज़बानी जमा खर्च बहुत हो चुके हैं उर्दू के लिए। जो सबसे बड़ा कारनामा है वो ये होगा कि उर्दू मीडियम स्कूल जितना कायम होंगे उतना उर्दू फ़रोग़ पाएगी। ये इसका बैनुल अक़वामी तो सतह पर कबूल किया जाना इंतहाई अहम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर जो उर्दू मीडियम स्कूल हैं उसको कई बार हमने देखा कि जो नाक़िबत अंदेश हैं वो उसको इंग्लिश मीडियम में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश बहुत गलत है, और हर हाल में उर्दू मीडियम स्कूल रहना चाहिए और बाकी उसकी तादाद बढ़नी चाहिए। सही साहब की देखा जो जिस तरह से आपने भी कहा, जी हम इसकी मजम्मत करते हैं उर्दू मीडियम स्कूलों को बंद करने की, और हम गुजारिश यही करेंगे और उर्दू आवाम से कहेंगे इसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाई जाए कि उर्दू मीडियम स्कूल जो कायम है वो बरकरार रहे, बल्कि दूसरे और कॉलेज कायम किए जाने की ज़रूरत है।
बहुत। जी अस्सलाम वालेकुम। और जैसे कि आज हमारा वर्ल्ड उर्दू डे बनाया गया है 9 नवंबर को 1877 में, जैसे उलामा इकबाल साहब हमारी उनका पैदाइशी यौम दिन बनाया गया है। और उस मकसद में हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत सारे प्रोफेसर उर्दू के और इतने बड़े बड़े मतलब लोग आए हुए थे। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि देखिए हर साल उर्दू का हमारा वर्ल्ड डे बनाया जाता है, आते हैं लोग और माशाल्लाह सबको एक जिसे कहते हैं कि एक अलग से मोटिवेशन दिया जाता है कि भाई हम कुछ करें। मगर ये सिर्फ एक 9 तारीख़ तक ही रहता है, फिर उसके बाद आने वाले टाइम में लोग भूल जाते हैं कि उर्दू डे क्या है। तो आज की जो हमारी बच्चे हैं, जो हमारे बैचलर बच्चे हैं, वो उर्दू से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो आज मेरा एक दिमाग, जैसे मैं एज ए सोशल वर्कर हूँ, मेरे इतने सारे NGO चलते हैं, मैंने जैसे एजुकेशन पे, मगर आज से मैंने ये अक़ीदा किया है कि 21 अप्रैल में इकबाल उलमा साहब को 1983 शायद वो एक्सपायर हुए थे। तो 23 अप्रैल समथिंग में मैं इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा सेमिनार करने वाली हूँ, जिसमें बच्चों को उर्दू का पूरे दिल्ली स्टेट में एक एक बच्चे को मैं लूँगी और उर्दू कंपटीशन में उनको एज ए पार्टिसिपेट करवाऊँगी। तो मैं चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ा मैं प्रोग्राम करूँ, जिससे हमारा एक उर्दू का एक बहुत अच्छा मैसेज जाए। और मेरी हर उन माँ बाप से हमेशा यही गुजारिश रहती है कि आप अगर उर्दू जैसे दुनिया की इंग्लिश तालीम, हिंदी हर तरह की सिखा रहे हैं, उसी तरह आप उर्दू को भी आगे लेके आइए। क्योंकि आप बच्चों को कुरान शरीफ या दीनी मसाइल समझाएंगी, जिस बच्चे ने कुरान शरीफ पढ़ लिया तो मैं समझती हूँ कि उसके लिए उर्दू कोई भारी लैंग्वेज नहीं है। तो इसलिए अगर आप उर्दू पढ़ेंगे तो कुरान शरीफ, और अगर कुरान शरीफ है तो इंशाल्लाह उर्दू आपके लिए कोई आसान कोई भारी चीज़ भी नहीं है। और मेरा मकसद यही है कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इन लोगों का साया, जितने भी हमारे सारे इतने चीफ़ गेस्ट आए हुए हैं, उनका साया हमेशा हमारे सर पर बना रहे। और ऐसे ही हर साल डॉक्टर सैयद साहब की ऐसी शख्सियत मैं सोचती हूँ कि आने वाले टाइम में हम लोग हम उनकी मतलब उनको देखकर हमें इतनी हिम्मत आती है कि हम कुछ भी नहीं है उनके लिए, जो सैयद साहब इतनी मेहनत करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगी कि आने वाले जो 9 नवंबर में और जो आने वाले हम प्रोग्राम करेंगे, इससे बढ़ चढ़कर और आगे मतलब सब आएँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उज़ैर बकाई है और आज का एक बहुत ख़ास दिन है ये 9 नवंबर आलमी यौम उर्दू डे। एक ऐसा दिन है जिसके अंदर हम उर्दू और उर्दू से जुड़े हुए लोगों को याद करते हैं। ख़ास तौर से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके आज भी उनकी याद में उनकी जो तालीमात हैं, जो उनकी उर्दू से मुताल्लिक़ जो चीज़ें हैं, लोग उसको आज भी याद करते हैं। उसी को देखते हुए आज ये प्रोग्राम रखा गया है। इसके अंदर बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे समाजी शख्सियात और बहुत सारे मज़हबी शख्सियात मौजूद थी इस प्रोग्राम में। उन सबको इनामात से नवाजा गया, उनकी हौसला अफजाई की गई है। और इसके साथ साथ और जो लोग तहरीकी लोग हैं जो उर्दू में काम करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी कि उर्दू को और कैसे बेहतर किया जा सके, उर्दू का मुस्तकबिल कितना अच्छा है। जो लोग आज भी ये कहते हैं कि उर्दू का मुस्तकबिल नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद ये महसूस होता है कि उर्दू का आज भी मुस्तकबिल है। और ये बात अलग है कि लोग उसको उस तरह से नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो उर्दू के कदरदान लोग हैं वो उर्दू को आज भी आगे पहुँचा रहे हैं। और आप ये देखिए कि आज यहाँ पर एक ऐसा उर्दू का माहौल था, कई किताबें यहाँ पर कई किताबों का इजरा हुआ। और वो किताबें जो पढ़ने के बाद सिर्फ उनका आप वो देखेंगे, हेडिंग देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कितने अच्छे मौजू उसमें रखे गए हैं, जो हमारे आज के बच्चों की तरबियत के लिए, समाजी तरबियत के लिए, समाजी इस्लाह के लिए बहुत बेहतर है। मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा आप सब लोगों का, मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मीडिया के लोग आए, उन्होंने इस प्रोग्राम को 4 चांद बख्शा और सब तक अपनी बात को प्रोग्राम को पहुँचाने के अंदर अहम रोल किया। शुक्रिया। स्कूल ज़्यादा है और मशरक़ी उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादा है, वो उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं। दिल्ली में भी हमारे काफ़ी स्कूल है और चल रहे हैं स्कूल उर्दू के। ये नहीं, सबसे बड़ा मदरसा गाज़ीउद्दीन जो आज एंग्लो अरबिक के नाम से, दिल्ली कॉलेज के नाम से, उसने बड़े बड़े उर्दू के शहदा पैदा किए हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में उर्दू का पैगाम आम किया है। ये लोगों को मालूम नहीं है, वो दिल्ली पर तंज करते हैं। दिल्ली में बहुत काम हुआ है, 1857 से लेकर आज तक जितने यहाँ स्कूल कॉलेज बने वो उर्दू के नाम पे बने। पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं बने कॉलेज उर्दू के नाम पे। एंग्लो ओरिएंटल स्कूल
ओरिएंटल कॉलेज, जिसको आप आज हम दिल्ली कॉलेज कहते हैं, वो मरहून मिन्नत है दिल्ली की। और पूरी दुनिया में उर्दू के फिलासफर, उर्दू के प्रोफेसर साहिबान दिल्ली से तालीम हासिल करके गए, चाहे मालेगांव हो, जलगांव हो, नेपाल हो, सबों ने उर्दू को दिल्ली से फ़रोग़ मिला। हैदराबाद हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, ये तीन हमारी रियासत ऐसी है जिन्होंने पूरी ज़िंदगी उर्दू के पर ख़त्म की, उर्दू को कायम कर रखने के लिए और बका करने के लिए। आज उसी का समर है पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में उर्दू का जो गुण गाया जाता है, जो उर्दू को तरक्की, जो हौसला दिल्ली से। मैं समझता हूँ कि हकीम साहब हमारे जो पैगाम देंगे वही काफ़ी है। उनकी कुर्बानियाँ हैं, उनका इज़हार है, और पाबंदी के साथ, वो मोहब्बत के साथ सबको जोड़ लेते हैं आलमी यौम उर्दू की मुनासिबत से। ये बहुत बड़ा कारनामा है। आज के वक्त में जो मफाद परस्ती का दौर है, इसमें कोई आदमी किसी को वक्त नहीं देना चाहता, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद को जमा कर लेना, ये हकीकत में बहुत खुशाइंद है और हमारे हकीम साहब के इखलास का नतीजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको कबूल फरमाए। उर्दू और इकबाल दोनों ही आज ख़ास तौर से मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आप लोग भी बहुत देर से इसको कवर कर रहे हैं। उर्दू की मोहब्बत में जितने भी हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए, और ख़ास तौर से हमारे सैयद अहमद साहब, डॉक्टर सैयद अहमद साहब, उनको खुसूसी मुबारकबाद कि उन्होंने इस तरह से एक तहरीक बनाई है। उस तहरीक के तौर पर उर्दू आलमी सतह पर मनाया जा रहा है उसको यौम उर्दू। और रहा सवाल इकबाल का, तो मैं ख़ुद इकबाल हूँ। मैं डॉक्टर सैयद अहमद इकबाल हूँ और इसमें बामुसम्मा भी हूँ। इकबाल ने कहा था, इकबाल भी इकबाल से आगा नहीं है, लेकिन मैं हूँ आगा, क्योंकि मैं इकबाल को जीता हूँ, पढ़ता हूँ। और ख़ास तौर से मेरे बड़े चचा जान थे, ज़िक्र यहाँ पे हुआ आलमी अदब का। इकबाल को दुनिया में, उनकी किताब है इकबाल और आलमी अदब, प्रोफेसर अब्दुल मुग़नी इंग्लिश के प्रोफेसर थे, उन्होंने किताब लिखी, दुनिया की तमाम ज़ुबान में तर्जुमा हुआ है उसका। और उसने ये वो इकबाल का आलमी सतह पे सबसे बड़े शायर का किया। तो मैं ये ख़ास तौर से मैं एक यूनिवर्सिटी का चांसलर नॉमिनेट हुआ हूँ, और अभी वहाँ एक इकबाल